باتیں تصویروں کے سنگ آوازوں کے رنگ 20 سال کی لگن نقش آئینہ فن پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر. پی ٹی وی کا سفر نہیں ایک تاریخ ہے. آج پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات دنیا کے 36 ممالک میں براہ راست دیکھی جا رہی ہیں. کرۂ ارض کی 2 ارب سے زیادہ آبادی تک اس کی نشریات کی براہ راست رسائی ہے. دنیا کا ہر تیسرا شخص اس کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. آج پی ٹی وی کی نشریات دنیا کے تقریباً 20 کروڑ گھروں میں دستک دے رہی ہیں. آج سے 30 برس پہلے پی ٹی وی کا سفر ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا تھا. پاکستان اور دنیا میں ٹیلی ویژن کی آمد کے درمیان 38 برس کا فاصلہ ہے. ٹیلی ویژن کو 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد کہا جاتا ہے. 26 جنوری 1926 کو اسکاٹ لینڈ کے ایک موجد جان لوگی بیئرڈ نے لندن کے رائل انسٹیٹیوٹ میں ٹیلی ویژن کی ایجاد کا پہلا کامیاب مظاہرہ کیا تھا. برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 1936 میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کی. براعظم یورپ کے بعد ٹی وی اسکرین جس ایشیائی ملک میں روشن ہوا وہ جاپان ہے. جاپان میں ٹی وی کا آغاز 1938 میں ہوا. پاکستان دنیا کا 92واں ملک تھا جو ٹی وی نشریات کے نقشے پر ابھرا. موجودہ مسلم دنیا کی روح سے پاکستان 20واں مسلم ملک بنا جس کے باسی ٹیلی ویژن کے سحر سے آشنا ہوئے. ادھر براعظم ایشیا میں بھی 16 ممالک کے افق پر ٹیلی ویژن نمودار ہو چکے تھے. پاکستان نے اپنی آزادی کے 17 سال بعد ایشیا کے 17ویں ملک کا اعزاز حاصل کیا جہاں ٹیلی ویژن نے اپنے قدم رکھے. فلک پہ کیسا یہ چاند نکلا زمین بھی چاندوں سے بھر گئی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا آغاز عموماً 1962 میں کراچی کی صنعتی نمائش سے کیا جاتا ہے لیکن یہ درست نہیں. آئیے تاریخ کے چند بند صفحات کو کھولتے ہیں. یہ 1952 ہے. ان دنوں کراچی ملک کا دارالحکومت تھا. برطانوی آفیسرز کی رہائشی بیرکس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے انڈر سیکرٹری اپنے اعلی افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں. اس فائل پر ٹاپ پرائیورٹی یعنی فوری توجہ کا اسٹکر چسپاں ہے. اس فائل میں ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے لیکن اعلی افسران ملکی وسائل میں کمی اور ضروری فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب اس تجویز کو فوراً رد کر دیتے ہیں اور یوں یہ پودا بن کھلے مرجھا جاتا ہے. 1955 میں موجودہ سینٹرل جیل کراچی کے قریب میں ہونے والی تیسری بین الاقوامی نمائش کے افتتاح سے پہلے نمائش کے امریکی پویلین میں 5 ستمبر کو ٹی وی کی نشریات پیش کی گئیں. ہم نے 1955 میں کوشش کی کہ ٹیلی ویژن یہاں کے لوگوں کو بھی دکھایا جائے تو کوشش کی ٹیلی ویژن کا کیا ہے پروگرام. پاکستان کے اس وقت کے قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 16 ستمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا. بعد میں انہوں نے امریکی پویلین کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹی وی اسٹوڈیوز کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا ہے کہ حکومت ٹی وی کو پاکستان کے لیے بہت ضروری سمجھتی ہے. امریکی پویلین میں پروگرام نشر کرنے کے لیے 40 فٹ قطر کا ایک گول کمرہ نما اسٹوڈیو قائم کیا گیا تھا. اس اسٹوڈیو کی دیواریں شیشے کی تھیں. RCA یعنی ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ کے 10 انجینئروں نے 2 ہفتے کی شب و روز محنت کے بعد یہ اسٹوڈیو قائم کیا تھا. جنرل محمد ایوب خان کے قائم کردہ قومی تعلیمی کمیشن نے جنوری 1960 میں اپنی رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کے 12ویں باب میں ملک میں جلد از جلد تعلیمی مقاصد کے لیے ٹیلی ویژن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا. 5 اکتوبر 1960 کو کابینہ نے ملک میں تعلیمی مقاصد کے لیے ٹی وی کے قیام کی منظوری دی.
फरवरी 1961 में सदर अयूब खान ने जापान का दौरा किया। वो जापान में टेलीविजन की तरक्की से बहुत मुतासिर हुए। उसी साल दिसंबर में हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर कोलंबो प्लान के 3 जापानी माहिरीन पाकिस्तान आए। उस वफ्द ने मुल्क में टेलीविजन के क़याम का तफसीली जायजा लिया। 1962 के अवाइल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में टीवी सिर्फ तालीम तक महदूद करने के बजाय आम मकासद के लिए मुतारिफ कराया जाए। दूसरी समत हुकूमत के बहुत से कारकर्दाजों का ख्याल था कि टेलीविजन को तालीम के बजाय निजी या तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना तायुश होगा। अक्टूबर 1962 में कराची में PIF यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल फेयर के उन्वान से एक और बैनुल-अक़वामी नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड ने एक तजुर्बाती टेलीविजन स्टेशन कायम किया। पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 200 टीवी सेट रखे गए। अवाम की फरमाइश पर उस स्टेशन को 31 जनवरी 1963 तक जारी रखा गया। उसी जमाने में हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में टेलीविजन के क़याम के लिए पेशकश तलब की। इस सिलसिले में 8 इदारों ने दिलचस्पी जाहिर की, जिसमें 3 गैर मुल्की इदारे भी शामिल थे। ये ख्याल था कि साहब ये एक ऐसा जरिया है जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से को लोगों को एक दूसरे से रूशनास कराया जा सकता है। आवाज़ तो पहुँचती है, लेकिन ये स्क्रीन पर जिस वक्त लोग आएंगे तो उनको एक दूसरे की बात समझने का ज़्यादा मौका मिले। ये भी ख्याल था कि ये तालीम का भी एक ज़रिया बन जाएगा। लिहाजा असल मकसद तो उस वक्त ये था, तफरीह का इतना मकसद नहीं था जितना ये था कि मुख्तलिफ सूबों के लोग जो हैं वो एक नेटवर्क में एक दूसरे से आशना हो सके, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी। अप्रैल 1964 में टेलीविजन प्लानिंग सेल कायम किया गया, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान का एक जुज़्व था। 19 जून 1964 को कोलंबो प्लान के तहत हुकूमत जापान की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन के लिए जापान का एक वफ्द पाकिस्तान आया। 2 महीने की शब-ओ-रोज़ मेहनत के बाद 5 अरकान ने 20 अक्टूबर 1964 को टेलीविजन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान के नाम से एक तवील रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश की। उधर मुल्क में टेलीविजन के क़याम के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। 1 मई 1964 को NEC ने असलम अजहर का तकर्रुर प्रोग्राम डायरेक्टर की हैसियत से किया। असलम अजहर थिएटर और रेडियो का वसी तजुर्बा रखते थे। सबसे बड़ी मुश्किल तो उस ज़माने में यही थी कि टेलीविज़न चलाने वाले लोगों में से किसी को भी उससे पहले टेलीविज़न चलाने का कोई तजुर्बा न था। पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविज़न के लिए जो 3 चीज़ें पस मंज़र में ज़रूरी होती हैं वो हैं रेडियो का तजुर्बा, थिएटर का तजुर्बा और सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री का तजुर्बा। तो रेडियो का तजुर्बा तो बहरहाल बर्रे सग़ीर में बहुत था, तवील और गहरा। फिल्म इंडस्ट्री का तजुर्बा जो था उससे हम पूरी तरह से इस्तिफ़ादा नहीं करना चाहते थे। इसकी बहुत सारे वजूह थी जिनमें इस वक्त जाना ज़रूरी नहीं। और थिएटर जो था उस वक्त, यानी मैं 1964 की बात कर रहा हूँ और लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो बावजूद इसके कि बहुत सारे अच्छे लोग, नौजवान लोग थिएटर से वाबस्ता रहे थे और थिएटर करते रहते थे और अच्छा करते थे, बहरहाल इस प्रोफेशनल सतह पर थिएटर पाकिस्तान में नहीं था। तो और फिर ये कि हम में से किसी ने भी पहले टेलीविज़न देखा नहीं और ना उसमें काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन मुश्किलात के तहत जो हमारे अंदर सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में थी उस वक्त वो यही थी कि एक जज्बा बहुत था और हम चाहते थे कि एक, यानी यूँ कहना चाहिए कि परफेक्शनिज़्म का एक जज्बा था हमारे अंदर, सबके अंदर। और यही था जिसकी मदद से जो सन 64 का पायलट फेज़ शुरू हुआ नवंबर में, वो 3 महीने बाद कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ। असलम अजहर की इस टीम में मज़ीद 3 अफराद शामिल किए गए। फजल कमाल रेडियो पाकिस्तान की ट्रांसक्रिप्शन सर्विस से आए। ज़का दुरानी मरहूम कराची आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। निसार हुसैन ईरान के शहर आबादान में टीवी प्रोड्यूसर की हैसियत से काम कर चुके थे।
کراچی میں واقع ویسٹ وہاف میں وزیر علی انڈسٹریز کے دفتر میں ٹیلی ویژن کے قیام کی منصوبہ بندی جاری تھی۔ جاپانی ماہرین نے ٹیلی ویژن پر اشتہارات متعارف کرانے کے لیے شعبہ سیلز میں 4 افراد ضیاء الدین جدی، سجاد حسین مرحوم، حمیدہ جویری اور رشید الاحد کا تقرر کیا۔ یہ لاہور کا مشہور ثقافتی مرکز الحمرا ہے۔ یہاں کبھی لاہور آرٹس کونسل کی عمارت موجود تھی۔ یہاں اگست 1964 میں کرائے پر ایک شیڈ حاصل کر کے ٹی وی کا دفتر قائم کیا گیا۔ ادھر ریڈیو پاکستان لاہور کی موجودہ عمارت کے پچھلے حصے میں اسٹوڈیو کی تعمیر شروع کر دی۔ بعد میں اسلم اظہر اور ان کے ساتھی بھی آرٹس کونسل سے یہاں ایک ٹینٹ میں منتقل ہو گئے۔ اب یہی سب کا آشیانہ تھا۔ جاپانی پاکستانیوں کا جذبہ تعمیر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے صرف 28 دن میں وہ کچھ کر دکھایا جو مہینوں میں ممکن نہ تھا۔ اسلم اظہر نے اپنی ٹیم کو وسعت دینا شروع کی۔ نثار مرزا اور انیس احمد کیمرے کی آنکھ بن گئے۔ توفیق اعجاز، جمیل آفریدی اور شہباز چودھری نے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سنبھالا۔ میک اپ آرٹسٹ کمال الدین احمد نے چہرے کے نقش سنوارنا شروع کیے۔ A.K. مسرت فلم ایڈیٹنگ کے نگراں تھے۔ ظفر سمدانی نے نیوز کا شعبہ سنبھالا۔ پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پی ٹی وی کی نشریات سے پہلے اور پروگراموں کے درمیان جو انسگنیا یعنی جو مخصوص نشان دکھایا جاتا ہے وہ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی نے تخلیق کیا تھا۔ زندہ دلانے لاہور نے ٹیلی ویژن کے جادوئی اسکرین کا بڑی بےتابی سے انتظار شروع کر دیا۔ ٹی وی کی مقناطیسی لہروں کو قید کرنے کے لیے اینٹینا درست کیے جانے لگے۔ 26 نومبر 1964 ملک میں ٹیلی ویژن کی پہلی صبح تھی۔ سپہر 3:30 بجے افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر ایوب خان نے ٹیلی ویژن کا افتتاح کیا۔ پی ٹی وی لاہور کے ریکارڈ کے مطابق قاری علی حسین صدیقی کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوا۔ زکا درانی مرحوم نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا سے متعلق معلومات فراہم کی۔ یہ وہ پہلا چہرہ تھا جو ٹی وی پر نمودار ہوا۔ اس کے بعد طارق عزیز نے اناؤنسمنٹ کی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ پھر مختلف پروگرام پیش کیے گئے۔ ہمارے دستکار کی میزبان مسز اختر عباسی تھی۔ اس پروگرام میں احمد خان کی تصویریں شامل کی گئیں۔ اسے نثار حسین نے پروڈیوس کیا۔ پروگرام لوک گیت میں طفیل نیازی اور سائیں اختر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام ہوائی جہاز بناؤ کی کمپیئرنگ BZ منظر اور فاروق رانا نے کی۔ بچوں کے لیے ہارون خان نے پتلیوں کا تماشا دکھایا۔ تو اس پروگرام بوجھو تو جانے بھی پیش کیا گیا۔ اس کے میزبان اشفاق احمد تھے۔ 8:30 بجے اردو نیوز پیش کی گئی۔ نیوز کاسٹر طارق عزیز تھے۔ میرے میک اپ مین جو تھے انہوں نے زندگی کا ہر تجربہ میرے ہی چہرے پر کیا۔ اتفاق تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اناؤنسر تھا۔ کمال الدین یہ پہلا میک اپ مین، اس نے جتنے تجربات کیے، جتنا ہاتھ صاف کیا وہ میرے ہی چہرے پر کیا۔ بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں۔ کاش بہت سی یادیں اس وقت ہمارے پاس VCR ہوتا یا ریکارڈنگ فیسلٹیز ہوتی تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی کہ اس وقت ان نوجوانوں نے، اب تو ہم بوڑھے بوڑھے سے نظر آتے ہیں، اس وقت سب نوجوان تھے کہ ہم نے کتنا کام کیا تھا۔ ہر ایسا عہد جو بھی آیا، ہر وقت ایسا آیا، 1965 کی جنگ آئی تو اس چھوٹے سے گھر سے ہم نے وہ ولولہ انگیز پروگرام پیش کیے کہ اہل لاہور اش کر اٹھے اور دشمن کانپا کرتا تھا ہمارے ٹیلی ویژن سے۔ اردو نیوز کی شہ سرخی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز۔ خبروں میں افتتاحی فلم بھی دکھائی گئی۔ اسٹوڈیو پروگراموں کے درمیان انگریزی فلمیں بھی پیش کی گئیں۔ پہلی خاتون اناؤنسر کمل نصیر تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلا اشتہار نشر کیا گیا وہ NEC کا تھا۔ اس اشتہار کا کوئی معاوضہ نہیں لیا گیا۔ اس وقت 30 سیکنڈ کے اشتہار کا نرخ 35 روپے تھا۔ 26 نومبر 1964 کو لاہور میں عید کا سا سما تھا۔
लोग हैरान हैरान आंखों से जीती जागती तस्वीरें देख रहे थे। टीवी सेट्स के आगे लोगों का हुजूम था। जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया था। ट्रैफिक में रवानी पैदा करने के लिए पुलिस को टीवी के स्विच ऑफ कराने पड़े। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए यूं एक नई दुनिया का दरवाजा वाह हुआ। ठहरी हुई जिंदगी में हलचल मच गई। यार टीम सही कर, लाहौर के लिए नहीं आ रहा। अच्छा हाले नहीं होया। अच्छा अच्छा मैं करना सही एले नहीं ये नहीं सही आ रहा यार, ठीक कर। हाँ और ठीक ही ठीक है। इब्तिदा में नशरियात का दौरानिया 3 घंटे था। पीर को छुट्टी होती थी। रिकॉर्डिंग की सहूलत मयसर न होने की वजह से तमाम प्रोग्राम बराह रास्त नशर किए जाते थे। लाहौर में टेलीविजन स्टेशन के क़याम की तकरीबन 1 माह बाद 25 दिसंबर 1964 को ढाका में दूसरे पायलट टेलीविजन स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। वहां पहले दिन तकरीबन 40 इश्तहारात दिखाए गए। इस तरह कारकुनों ने ये साबित कर दिखाया कि किसी का दस्ते निगर बनने के बजाय अपनी मदद आपके फलसफे पर अमल करके भी टेलीविजन को चलाया जा सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने जायज़ा लिया, देखा तो महसूस हुआ कि लाहौर में जो परेशानियाँ इब्तिदाई थीं, जो मुश्किलात थीं, वही परेशानियाँ और वही मुश्किलें यहाँ भी देखने में आईं और ये फितरी बात थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि यहाँ कम बेश हमें कुछ एक अच्छी फ़िज़ा मिली, इसलिए कि यहाँ फ़नून लतीफ़ा का एक मेयार था, एक अच्छी रवायत मौजूद थी। लाहौर टेलीविजन स्टेशन के दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 28 नवंबर को नजराना के उन्वान से टेलीविजन पर पहला ड्रामा दिखाया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर फजल कमाल थे। नुमाया फनकारों में मोहम्मद कवी, बख्तियार अहमद, बेगम तमन्ना इब्राहिम, मुनव्वर एजाज, बेगम शमीम फातिमा, कंवल हमीद और खुर्शीद शाहिद शामिल थे। ये अमर मेरे लिए बायस इत्मीनान है, बल्कि मेरा एजाज़ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला ड्रामा मैंने प्रोड्यूस किया। इसके बाद लगभग 100 ड्रामे पहले 2-3 साल में लाहौर और रावलपिंडी से करने का मौका मिला। मेरे ख्याल में इन ड्रामों की प्रोडक्शन की बदौलत पीटीवी ड्रामे को एक रुख मिला और बुनियादी राह मुतय्यन हुई। टेलीविजन को ये नजराना नजमा फारूकी ने दिया। ये मैंने एक ड्रामा लिखा था शिकस्त रेडियो के लिए। वो हम लोग निकल रहे थे अपनी दोस्त के साथ, मैं जा रही थी रेडियो स्टेशन। रास्ते में टीवी का खेमे वगैरह नज़र आए, पता चला था कि टीवी भी शुरू होने वाला है। वहाँ अंदर गए तो उनसे मुलाकात मेरी हुई असलम अजहर साहब से। तो उन्होंने खुद ही बात बात में कहा कि मैं आपका ये देख सकता हूँ, क्या है आपके हाथ में। तो वो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने दूसरे दिन बुलाया फिर और उन्होंने बाद में कहा ये आप मेरे लिए तब्दील करके दे दें टीवी को। मैं ले गई, वो उन्होंने ले लिया। कुछ दिनों के बाद मैंने एक और लिखा ड्रामा जिसका नाम नजराना था, वो भी ले गई असलम साहब ने, फिर वो भी ले लिया और बाद में बताया कि इस नजराने से वो टीवी पाकिस्तान का शुरू कर रहे हैं। 90 दिन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान में हफ्ते में एक ड्रामा नशर किया जाता था। टेलीविजन के इब्तिदाई ड्रामा निगारों में अहम नाम अशफाक अहमद, डॉक्टर अनवर सज्जाद, रफ़ी पीरज़ादा, आगा नासिर, कमाल अहमद रिजवी, रियाज फरशोरी और नजमा फारूकी के थे। 5 दिसंबर 1964 से स्टूडियो थिएटर के उन्वान से 25 मिनट दौरानिए के कुल 11 ड्रामे नश्र किए गए। मोहम्मद कवी ने जल्द ही अपनी जगह बना ली। उस जमाने में फैसिलिटीज नहीं थी इतनी, अब तो बहुत हैं। ये ENG कैमरा भी नहीं था, बड़े बड़े कैमरे होते थे, 2 देवनुमा
दिखाई देते थे, अजीब से उससे खौफ आता था। और लेंसेज जब चेंज होते थे धड़ धड़ लाल, मैं तो बहुत डरता था, पता भी नहीं था कि ये क्या है। और कंट्रोल रूम में एक अजीब सी लाल पीली बत्तियां, सब कुछ, बस वो डब्बा था छोटा सा। लेकिन एक बात थी, उन 2 कैमरों से भी बड़े बड़े काम होते थे, बदहवाजियां भी बड़ी होती थी, प्रोड्यूसर से भी, एक्टर से भी, बाज़ औक़ात कंट्रोल रूम में इंजीनियर हजरात से भी। लेकिन एक दूसरे छुपा लेते थे, फिर बाद में मेहनत बड़ी करते थे, पता अब भी होती है, अब बेपनाह मेहनत होती है। उस जमाने में खवातीन आर्टिस्ट ढूंढे से नहीं मिलती थी। मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से सेलेक्ट करके, क्योंकि मैं रेडियो पे काम करती थी बचपन से, मुझे भेजा गया कि आप जाइए लाहौर में ड्रामा कीजिए। तो बहरहाल मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे बहुत तैयार किया कि मैं जाऊँ, ऑडिशन दूँ, और पता नहीं वहाँ क्या कुछ होगा, हो सकता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन जब मैं गई तो मुझे सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहा गया। तो मैं तो रेडियो के आर्टिस्ट थी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ दिया। और उसके बाद होता ये था कि क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में रहती थी और मुझे ड्रामा करने के लिए रावलपिंडी से लाहौर जाना पड़ता था। तो होता ये था कि मैं एक प्ले करती थी और मैं वापस पहुंचती थी, तो टेलीफोन आता था कि जी नेक्स्ट प्ले के लिए आप दोबारा आ जाएं। तो मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में अगर मैं कहूँ कि गिनती की भी ख़वातीन नहीं थी, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा मुनासिब होगा। 90 दिन की आजमाइशी मुद्दत खत्म होते ही 27 फरवरी 1965 को 5 करोड़ के सरमाए से टेलीविजन प्रोमोटर्स कंपनी कायम हुई। इस कंपनी में हुकूमत पाकिस्तान के शेयर सबसे ज्यादा थे। जापान के इदारों एनईसी और गोशो और इंग्लैंड की कंपनी थॉमसन टेलीविजन इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी शेयर्स हासिल किए। कंपनी के कयाम के साथ ही दोनों पायलट टेलीविजन स्टेशन इस कंपनी के कंट्रोल में आ गए। जंग सितंबर पूरी कौम के साथ साथ पीटीवी के लिए भी एक चैलेंज बन गई। टेलीविजन के कारकुनान इस महाज पर डट गए। टेलीविजन की न्यूज़ टीमों ने खतरात की परवाह किए बगैर महाज जंग से ताज़ा तरीन खबरें और फिल्में भेजी। टीवी ने ऐसे प्रोग्राम पेश किए जिनसे जज्बे जहाद उभारने में मदद मिली। जंग के दौरान और इसके बाद टीवी प्रोग्रामों में नुमायां तब्दीली देखने में आई। लाहौर टेलीविजन पर इब्तिदा ही से ड्रामे और मज़ाहिया सीरियल ने बड़ी मकबूलियत हासिल की। जब पाकिस्तान टेलीविज़न इस मुल्क में आया, उस वक्त हम लोग स्टेज पे काम करते थे, क्योंकि लाहौर में कोई एकेडमी नहीं थी, कोई ऐसी दरसगाह नहीं थी जहाँ से ये फ़न का काम सीख के आगे जाए आदमी। तो थैंक्स गॉड पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें बहुत तरबियत दी। टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल के ड्रामे में आपको रंग नज़र आता है, आपको सीन चेंज नज़र आते हैं, अब बाहर की दुनिया देख सकते हैं। उस ज़माने में हर चीज़ जो है वो स्टूडियो के अंदर तक महदूद थी, लेकिन उसके बावजूद थीमेटिकली हम ये कोशिश करते थे कि पाकिस्तान का माहौल, चाहे वो देहाती हो चाहे वो शहरी, हर तरह का पेश किया जाए। मिसाल के तौर पे जो मैंने पहले सीरियल किया जिसका नाम था टाली थले, और उसके बाद शहर किनारे, और उसके बाद ऊंचे बुरज लाहौर दे, ये पाकिस्तान के हर शोबे को कवर करते थे। टाली थले का माहौल जो था वो देहाती था, उसके कैरेक्टर देहाती थे। शहर किनारे का मफहूम ये था कि जो देहात और शहर है उसके दरमियान जो बस्तियां हैं उनकी ज़िंदगी को नुमायाँ किया जाए, और ऊंचे बुरज लाहौर दे फिर शहर की ज़िंदगी को नुमायाँ करते थे।
अलिफ और नून पाकिस्तान टेलीविजन का पहला मकबूल तरीन प्रोग्राम था। ये 4 अदवार पर मुहित है। पहला दौर 1 जून 1965 से 30 नवंबर 1965 तक जारी रहा। इस दौरान 23 प्रोग्राम नश्र किए गए। अलिफ और नून देखने के लिए पब्लिक मकामात और होटलों पर एक हुजूम होता था। घर छोटे पड़ जाते थे। इस प्रोग्राम की मकबूलियत की वजह से टीवी सेट की खरीदारी बढ़ गई। बहुत सी कंपनियों ने टीवी दरामद करना शुरू कर दिए। अलिफ और नून दूसरी मर्तबा 15 मार्च 1968 से 18 मार्च 1969 तक दिखाया गया। अलिफ नून के अलावा भी और बहुत सी यादें हैं। हमने टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया और वाकई इसको हमने बहुत एंजॉय किया। इससे हमें माली मुनफ़ियत कोई ख़ास नहीं हुई। इससे हमारा एक वक़ार हमें मिला और वो हमें पाकिस्तान में ही मिल सकता था। ड्रामों का सिलसिला ज़ाविये एक दिलचस्प तजुर्बा था। इसमें मौके की मुनासबत से सिचुएशन बनाई जाती थीं और मसनूआत की तशहीर ड्रामे के किरदारों और मकालमात के जरिए की जाती थी। इस सिलसिले का पहला ड्रामा 25 मई 1966 को नश्र हुआ। इसे अशफाक अहमद ने लिखा और आगा नासिर ने प्रोड्यूस किया। 28 जून 1967 तक इस सिलसिले के 58 ड्रामे टेलीकास्ट किए गए। बहुत ही अच्छा तोहफा है चाचा, घड़ी और वो भी मिल्टन की। मैंने इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। ये बड़ी बाएतमाद, मजबूत और सही वक्त बताने वाली घड़ी। बिल्कुल, दुकानदार भी यही कह रहा है। हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने से मुराद ये इब्तदा में जब ड्रामे लिखे जाते थे तो उनमें तनव्वुर था। उसमें बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ लिखी गई। यानी उसमें कुछ मैंने ही ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे एक नौजवान लड़कों का ग्रोह था जिन्होंने कहानी की तलाश के उन्वान से ड्रामे लिखने का एक सिलसिला शुरू किया और उन्होंने बहुत कमाल के ड्रामे, जो ड्रामा उनका पहले से हमेशा मुख्तलिफ होता था, वो पेश किए। 1969 में कहानी की तलाश में नाजरीन खोकर रह गए। ये अनवर सज्जाद, खालिद सईद बट और फारूक ज़मीर की काविश थी। तो कहानी की तलाश का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू टेलीविज़न के लिए ये हुआ कि पहले तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये थी कि मैं, खालिद सईद बट साहब, डॉक्टर खालिद सईद बट और फारूक ज़मीर तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, यूनाइटेड प्लेयर्स। और टेलीविज़न वालों से ये फ़ैसला हुआ कि यानी वो टेलीविज़न की तारीख़ पाकिस्तान में की पहली पैकेज डील थी कि हम खेल बाहर से, अब वो तो कमर्शियल तो अब शुरू हुआ है ना जी, कि आप कमर्शियली ख़रीदते हैं लोगों से खेल। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि हम एक पैकेट बना के देंगे, टेलीविज़न का प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करेगा हमारी एआनत के साथ, कि हम जिस तरह शॉर्ट डिवीज़न करते हैं, पूरी डिस्कशन, 7 दिन के रिहर्सल्स, खेल पहले तैयार होते थे, हम ऐसे एक साहब लिखते थे, दूसरे साहब डायरेक्ट करते थे और तीसरे साहब उस पर लीड करते थे। और उसमें हमारी और टेलीविज़न का ये मुआहदा था, एक अनरिटन मुआहदा, कि हम नया टैलेंट जो है अपने वेटरन टैलेंट के साथ उन्हें कास्ट करेंगे। 1967 में खलील अहमद और नीना हसन ने मौसीकी सिखाने के लिए कलियों की माला का आगाज किया। लयत अहमद ने साइंसी प्रोग्राम की इब्तिदा की। साइंस का पहला प्रोग्राम क्यों और कैसे, जो मैंने शुरू किया था 2 अप्रैल 1965 से, और वो चला है सितंबर तक। उसके बाद आपकी पहली सालगिरह 1965 26 नवंबर को हुई और वहाँ से साइंस मैगजीन शुरू हुआ, जो फिर साल चलता रहा। फिर 1976 तक यहाँ रावलपिंडी से भी चल। जब आपका कराची स्टेशन शुरू हुआ है 2 नवंबर को, तो उस पर भी साइंस मैगजीन प्रोग्राम चलाया गया। फिर जब रावलपिंडी का स्टेशन 23 मार्च 1967 को शुरू हुआ, तो वहाँ भी साइंस मैगजीन शुरू हुआ। तो एक साइंस मैगजीन रावलपिंडी से रिकॉर्ड होता था, जो कि रावलपिंडी और कराची से चलता था, और एक साइंस मैगजीन लाहौर में अलहदा होता है, इसलिए कि लाहौर में मई 1968 तक BTR नहीं था। तो एक प्रोग्राम वहाँ लाइव करना होता था और एक पिंडी आकर रिकॉर्ड कराना पड़ता था, जो कि फिर कराची चलता था। अतर शाह खां के मज़ाहिया सीरियल लाखों में 3 ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। ये प्रोग्राम 14 जून 1966 से 24 अप्रैल 1967 तक कहकहे बिखेरता रहा। तो मैंने एक सीरियल लिखा, उसका नाम था लाखों में 3।
3 बेवकूफ़ जासूस थे उसमें, डॉक्टर नो, डॉक्टर यस, डॉक्टर वॉट। जानते वानते कुछ नहीं थे जासूसी के बारे में, अपने आप को बहुत कुछ शर्लक होम्स टाइप समझते थे, मतलब पैरोडी थी वो। तो वो कवि की ज़िंदगी की पहली सीरियल थी, अली एजाज की ज़िंदगी की पहली सीरियल, और मेरी भी पहली सीरियल थी वो बतौर राइटर। इब्तदाई दौर ही से मूसीकी के प्रोग्राम नाजरीन के पसंदीदा प्रोग्रामों में शामिल थे। असातिज़ा पर यह इतराज़ किया जाता था कि वो रेडियो पर मुंह बिगाड़ कर गाते हैं, लेकिन टीवी पर वो बेहतर तौर पर गाने लगे। गाने के दौरान में हाथ, गर्दन और आंखों के इस्तेमाल को मूसीकी की इस्तिलाह में निरत कहा जाता है। रेडियो पर निरत का इजहार मुमकिन न था, लेकिन टीवी ने इस फन को नए जाविये अता किए। आपकी खिदमत में एक ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें तसव्वुर खानम ने अपने जौहर दिखाए। आजम खुर्शीद प्रोड्यूसर थे और तारिक अजीज पहली मर्तबा कॉम्पेयर हुए। 1967 में लोक रंग, आहंग, झनकार, संगीत बहार और शाम गजल पसंद किए गए। रावलपिंडी की चंद आर्मी बैरक्स में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया। इसके पहले प्रिंसिपल असलम अजहर थे। CTI एक मुकम्मल टीवी स्टेशन की सहूलियात से आरास्ता था, इसीलिए इसे एक टीवी स्टेशन में तब्दील करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। चकलाला की इस फौजी इमारत में 15 जनवरी 1967 को सदर अयूब खान ने मुल्क के तीसरे टेलीविजन स्टेशन का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जुड़वां शहर होने की वजह से इस स्टेशन को इब्तिदाई में रावलपिंडी इस्लामाबाद टेलीविजन स्टेशन कहा गया। इब्तिदाई दौर के बच्चों के प्रोग्रामों में साइंस क्लब, कलियों की माला, शब बखैर नन्हे दोस्तों, गुंचे, गुड़िया घर, बच्चों की कहानी और कहावत कहानी शामिल थी। कलियों की माला में बच्चों को मौसीकी की तालीम दी जाती थी। नाहिद नियाजी उर्दू और मुस्लिउद्दीन बंगला में नगमे सुनाते थे। इस प्रोग्राम का इब्तिदाई नाम पद्मा की मौज रखा गया था। 20 मिनट दौरानिये का ये प्रोग्राम जुलाई 1967 से शुरू हुआ और मार्च 1970 तक जारी रहा। मार्च 69 में सूबे सरहद के फनकारों के लिए आगोश कोहिस्तान के उन्वान से प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम की रिहर्सल उमूमन पेशावर ही में होती थी और फनकार रिकॉर्डिंग के लिए इस्लामाबाद आते थे। तो शहजाद खलील मरहूम यहाँ आए और उन्होंने प्रोग्राम करने के बारे में मुझसे बात की। पहला प्रोग्राम पेशावर पर ही हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री थी जो पेशावर पर बनी। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम अरबाब खान ने किया और वो था दरिया खैबर पे। फिर तीसरा प्रोग्राम दरिया आदम खेल पे अयूब साबिर मरहूम ने किया, उन्होंने लिखा। ये 3 प्रोग्राम जब हो गए तो फिर ये तय हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें इस इलाके की हर चीज़ आ जाए, उसमें कल्चर भी आए, अदब भी आए, मौसीकी भी आए, ड्रामा भी आए और खेल वगैरह और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाएं। चुनाचे आगोश कोहिस्तान उसका नाम तय हुआ और उसमें 2-3 चंक हुआ करते थे। बसीरत के उन्वान से पहला मजहबी प्रोग्राम 2 मई 1968 से शुरू किया गया। ये प्रोग्राम सैयद फैजी ने तहरीर किया। इस उन्वान से आज भी ट्रांसमिशन का आगाज होता है। लाहौर की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टेशन से भी स्टूडियो थिएटर के उन्वान से इनफरादी ड्रामे शुरू किए गए। पहला ड्रामा असलम अजहर ने किया। उसका नाम सुर्ख नदी के मोड़ पर था और इसे मुन्नू भाई ने तहरीर किया था। 1968 और 69 में शब तमसील के उन्वान से भी ड्रामे नश्र हुए। 1967 के अवाखिर में खिड़की के उन्वान से पहली सीरीज में कुल 44 ड्रामे टेलीकास्ट किए गए। 1969 में आज का खेल, लगन अपनी अपनी, आप बीती, अगर मगर और मुस्कुराहटें दिखाई गईं। इसी साल राना शेरवानी ने ड्रामा सीरियल सफेद साया प्रोड्यूस की, जो बहुत से फनकारों के लिए यादगार साबित हुई। मेरा जो पहला सीरियल 69 में सबसे पहला सीरियल था वो बहुत यादगार था और वो इस हवाले से मुझे यादगार लगता है कि उसमें बहुत से हमारे अब जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जो हैं भी नहीं इस दुनिया में, सलीम नासिर,
عثمان پیرزادہ اور شیلا احمد میرا ہم سب کا پہلا سیریل تھا اور وہ بہت پاپولر ہوا. اس میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ وہ رانا شیروانی نے کیا تھا. جمیلہ شاہین ایک رائٹر تھی, انہوں نے اس کو اڈیپٹ کیا تھا وومن ان وائٹ سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ڈبل رول پہلی دفعہ دکھایا گیا تھا. شیلا احمد کا ڈبل رول تھا اس میں اور وہ بہت پاپولر ہوا تھا. اس لحاظ سے وہ بہت ہی میرے لیے یادگار پلے ہے. 1968 اور 69 میں اوراق کے عنوان سے کلاسیکی کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کی گئی. یہ سلسلہ ناظرین نے بہت پسند کیا. اسے فیاض الحق مرحوم نے پیش کیا. یہ فاطمہ ثریا بجیا کا ابتدائی پروگرام تھا. لیکن میرے سپرد جو کام ٹیلی ویژن نے کیا وہ سب سے زیادہ مشکل کام تھا. ادب عالیہ, اردو کلاسیکی ادب. اب کہنے کو وہ اردو کلاسیکی ادب تھا, لیکن اس میں پھر پنجاب کی کہانیاں, بلوچستان کی اور مختلف لکھنے والے, پھر پرانی مثلا کہ اردو کی سب سے پہلی کہانی قصہ چہار درویش, اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ پروگرام یوں چیلنج بھی تھا اور بہت بھاری پروگرام, مشکل پروگرام تھا کہ اس میں صرف آپ ادب عالیہ ہی کو نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ان پرانے وقتوں کو بھی پیش کر رہے ہیں. ماحول, ثقافت, لہجہ, گفتگو, بہت سے الفاظ ہی اس زمانے میں نہیں تھے اور بہت سے الفاظ جو اس زمانے میں تھے وہ آج نہیں بولے جاتے. تو اس طرح کا مشکل پروگرام تھا. لیکن میرے خیال میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں 100% کامیاب ہو گئی اپنے پروگرام کو پیش کر کے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی اور مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے. ٹیلی ویژن کی خبروں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بھی جرمن حکومت نے پی ٹی وی سے بڑا تعاون کیا. 13 مارچ 1967 کو کیے گئے ایک معاہدے کے تحت ATS یعنی ایشین ٹیلی ویژن سروس کا قیام عمل میں آیا. 19 مئی 1967 کو ATS نے اپنے کام کا آغاز جرمن پارلیمنٹ کے صدر کے دورہ پاکستان کی نیوز کوریج سے کیا. ابتدا میں صرف جرمنی سے نیوز فلموں کا تبادلہ کیا گیا. بعد میں اس کا دائرہ 60 ملکوں تک وسیع کر دیا گیا. اس ادارے نے دستاویزی فلموں کا تبادلہ بھی کیا. ATS نے خبروں کی برق رفتار ترسیل کے لیے ملک کے اہم شہروں میں اپنے نمائندے بھی مقرر کیے. جب ضرورت ہوتی تو اس کی ٹیموں کو بیرون ملک بھی بھیجا جاتا. 27 جون 1967 کو ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کر دیا گیا. اس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن رکھا گیا. الطاف گوہر اس کارپوریشن کے پہلے چیئرمین فائز ہوئے. یہ نئے دور کا آغاز تھا. کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کے افتتاح کے دن قریب آ رہے تھے, اسی لیے اگست 1967 میں سینٹرل سیلز آفس کا قیام عمل میں لایا گیا. تمام آزمائشوں سے کامیابی سے گزرنے کے بعد کراچی میں ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا. یہ ملک کا پہلا باقاعدہ اور مکمل ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا. جمعرات 2 نومبر 1967 کو کراچی ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا. کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی خوبصورت عمارت بقعہ نور بنی ہوئی تھی. صدر پاکستان محمد ایوب خان ملک کے پہلے باقاعدہ اور مکمل ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کرنے کراچی تشریف لائے. زید بخاری پہلے جنرل مینیجر مقرر کیے گئے. 6 کلو واٹ ٹرانسمیٹر اور 106 میٹر بلند ٹاور کے ذریعے 6:25 پر ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا. کراچی ٹی وی کے ریکارڈ کے مطابق انصار ناصری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. 6:26 دستاویزی فلم کراچی شہر. 7:35 پروگرام ٹیلی ویژن ہاؤس. 7:45 بچوں کا پروگرام برخوردار. 8 بجے راحت سعید نے پہلی اناؤنسمنٹ کی. 8:30 پر اردو نیوز. 9:22 اردو ڈرامہ طبیب. 10:01 پر سلوگنز. پھر سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پہلی تربیت یافتہ اناؤنسر غزالہ یاسمین کی اناؤنسمنٹ. 10:05 پر انگریزی خبریں. نیوز کاسٹر احمد خلیل. اور 10:10 پر قومی ترانہ. دسمبر 1967 کو زید بخاری کی جگہ اسلم اظہر جنرل مینیجر مقرر کیے گئے. پھر وہ اس عہدے پر 30 دسمبر 1971 تک فائز رہے. کراچی ٹیلی ویژن کے قیام سے
पी टीवी को एक नई जहत मिली। यहाँ प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने की महदूद सहूलत इब्तिदा ही से मौजूद थी। कराची टीवी ने सनतकारों को नई राह दिखाई। दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल से पी टीवी ने स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्रामों का आगाज किया। इस सिलसिले में 29 दिसंबर 1967 को DFA फुटबॉल मैच HPL के ताउन से कराची के नाज़रीन को बराह रास्त दिखाया गया। टेलीविजन की इफादियत के पेश नज़र सरमायाकारों ने अपने इश्तहारी बजट के बड़े हिस्से को टेलीविजन के लिए मखसूस करना शुरू कर दिया। मुल्क में एडवर्टाइजिंग एजेंसियों की तादाद भी बढ़ने लगी। रोजगार के लिए वसाइल पैदा हुए, तख्लीक कारों को नए आसमान मिले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद और कराची स्टेशन पर रिकॉर्डिंग की सहूलत की मौजूदगी की वजह से इन दोनों मराकज से 1967 ही में प्रोग्राम का तबादला होने लगा। लाहौर में प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला 1968 के अवाइल से शुरू हुआ। बच्चों में कलियों की माला बहुत मकबूल हुआ। 1 जून 1968 में पहला प्रोग्राम पेश किया गया। इसमें सोहेल राना बच्चों को मौसीकी की तालीम देते थे। इसकी प्रोड्यूसर शीरी खान थीं। मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक अच्छा खासा काम मौसीकी में नहीं हुआ था, शायरी में भी बहुत कम हुआ था। लिहाजा मैंने ये महसूस किया कि मुझ पर एक मौसीकार की हैसियत से ये फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं जहाँ अपने आप के लिए, अपने आप को महसूस करने के लिए म्यूज़िक दे रहा हूँ, जहाँ मैं इतने सारे लोगों के लिए दे रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनका भी ख्याल करूँ और आने वाली नस्ल को ऐसा तोहफ़ा, ऐसा नजराना दे जाऊँ कि वो भी याद रखे और मैं भी याद रखूँ। मौसीकी के प्रोग्राम सुर सागर, झनकार, मौसीकार, लोक संगीत और साज़ो आवाज़ आवाम की पसंदीदगी के मयार पर पूरे उतरे। क्विज प्रोग्रामों में इनामात शायकीन की तवज्जो का खुसूसी मरकज बने रहे। जीना बजीना टेलीविजन का पहला मकबूल क्विज प्रोग्राम था जो 10 जनवरी 1968 से शुरू हुआ। सैलानी के साथ के उन्वान के तहत इंतहाई मकबूल दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किए गए। उबैदुल्ला बेग की खूबसूरत तहरीर नाजरीन को उसी माहौल का हिस्सा बना देती थी। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम 29 दिसंबर 1967 को नशर किया गया। इसके प्रोड्यूसर इशरत अंसारी थे। चंद प्रोग्राम अब्दुल करीम बलोच ने भी पेश किए। 1968 को एक और यादगार प्रोग्राम कसौटी शुरू किया गया। ये रेडियो पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम चीस्ता के सिलसिले ही की एक कड़ी थी। इस प्रोग्राम में उबैदुल्ला बेग और इफ्तिखार आरिफ मुख्तलिफ शख्सियात वगैरह को सिर्फ 20 सवालात में बूझ लेते थे। पहले इसके मेजबान कुरैशपुर थे, बाद में इसके मेजबान हिमायत अली शायर भी रहे। दूसरे मराकज़ की तरह कराची में भी ड्रामे अवामी पसंद के लिहाज से सरे फहरिस्त थे। हफ्ते में उमूमन एक ड्रामा नश्र किया जाता था। समझा। 1967 के इब्तदाई 2 माह में कराची टेलीविजन से 12 ड्रामे पेश किए गए जो अंसार नासरी, गुलाम अब्बास, अनवर इनायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, सलीम अहमद, नईम ताहिर, फारूक जमीर और रियाज फरशोरी ने तहरीर किए। इनके प्रोड्यूसर्स तारिक अजीज, अमीर इमाम, जमान अली खान, इशरत अंसारी और आगा नासिर थे। 1968 में ऐवान तमसील के उन्वान से ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें 86 ड्रामे नशर किए गए। तो क्या होता कराची टीवी का पहला सीरियल था जो जमीरुद्दीन अहमद ने लिखा और कंवर आफ्ताब अहमद ने पेश किया। 16 जुलाई 1968 से मेरी पसंदीदा कहानी का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बड़े अदीबों की शाहकार कहानियों की ड्रामाई तश्कील की जाती थी। 1969 में तंज़ो मज़ा से भरपूर सिलसिला गर तू बुरा न माने पेश किया गया। इसके खाके अली जफर जाफरी और दीगर अफराद तहरीर करते थे। मेजबान मोहसिन शिराजी थे। खुदा की बस्ती का शुमार टीवी क्लासिक्स में किया जाता है। शौकत सिद्दीकी के इस शाहकार नॉवेल की ड्रामाई तश्कील शौकत सिद्दीकी के हमरा फैज़ अहमद फैज़ ने भी की। इसकी एक किस्त के बाद ही दूसरी किस्त का इंतजार शुरू हो जाता था। खुदा की बस्ती जुलाई 1969 को शुरू की गई और दिसंबर 1969 तक इसकी 25 किस्तें पेश की गईं। बहुत खामोश नजर आ रही है, तबीयत कैसी है?
सर में दर्द हो रहा है। हो तो लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, ठीक हो जाएगा। अफसानों नावलों का उस सिलसिले में जो तजुर्बात टेलीविज़न ने किए हैं वो बड़े कामयाब रहे। उससे न सिर्फ उर्दू ड्रामे को फ़रोग़ हासिल हुआ, उर्दू अफसाने को, उर्दू नावलों को टेलीविज़न ने मुल्क के तमाम तबक़ात से और हर हिस्से से और हर गोशे से मुतादिफ कराया। 30 दिसंबर 1968 को लाहौर में पायलट ट्रांसमीटर की जगह 5 किलोवाट ताकत का नया ट्रांसमीटर नस्ब किया गया। इसका इफ्तिताह गवर्नर मगरबी पाकिस्तान जनरल मोहम्मद मूसा ने किया। 23 मार्च 1969 को तकनीकी शोबे में एक अहम पेशरफ्त हुई। मलका कोहसार मरी में सतह समंदर से 2207 मीटर्स बुलंदी पर मुल्क का पहला बूस्टर नस्ब किया गया। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टेशन के प्रोग्राम पेशावर में भी देखे जाने लगे। 1969 ही से पाकिस्तान में बनने वाली टीवी इश्तहारात को अवार्ड्स देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब कमर्शियल अवार्ड टीवी की मुस्तकिल रिवायत बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन में बाकायदा यूनियनिज्म का आगाज 1969 से हुआ, जब लाहौर, कराची और टीवी हेडक्वार्टर्स में यूनियंस रजिस्टर हुई। 1964 से 1969 तक एक तवील मुद्दत नहीं, सिर्फ 5 साल का वक्फा है। इन 5 वर्षों में पीटीवी ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से अपने सफर का आगाज किया। सिर्फ 5 बरस में 4 टेलीविजन स्टेशन और 1 बूस्टर नस्ब करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। तेरे ही चर्चे है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, जुबा जुबा तेरे ही चर्चे। 1964 में 36 प्रोड्यूसर्स, इंजीनियर्स और दीगर तकनीककारों ने जिस इनकलाब की बुनियाद रखी थी, उनकी तादाद 1969 के खत्म होते होते 238 तक पहुंच गई। 1964 में मुल्क की 9.32% आबादी तक टीवी की पहुंच थी। यूं 5 बरसों में पीटीवी ने मजीद 17.76% आबादी को अपने हिसार में ले लिया। 1964 में पीटीवी की नशरियात 8029 मुरब्बा किलोमीटर रकबे तक महदूद थी। 1969 तक ये रकबा 61,383 मुरब्बा किलोमीटर तक जा पहुंचा। 1964 में टीवी की नशरियात मुल्क के सिर्फ 1% रकबे तक महदूद थीं। 1969 में रकबा बढ़कर 7.64% हो गया। 1964-65 में पीटीवी की आमदनी 1.5 लाख रुपए थी। 1969 के इख्तिताम तक ये 92 लाख रुपए हो गई। 1964 से पहले टेलीविजन पाकिस्तान में एक ख्वाब था। 1969 जाते जाते ये ख्वाब हकीकत बन चुका था। पीटीवी के सफर के इस पहले संग मील ने हमें बताया कि अपने वसाइल से बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर अज़्म जवां हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, और पीटीवी के कारकुन अपनी लुगत में नामुमकिन का लफ्ज नहीं रखते। पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर, जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, शौक शौक का हसी एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नई मुसाफतें दिए, रोशनी बना रहे रवा दबा रहे, यूं ही रवा दबा रहे।